Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the elbow joint. I'm Dr. Sadia Fundi. Acha, human elbow. So this is an elbow, and the human elbow has three summation of three articulations. So what are those articulations? We'll discuss in a while. So first is the humero-ulnar joint. So this is the humero-ulnar joint. This is the trochlea of the humerus, and this is the trochlear notch. And now you better understand this trochlear notch is present in the ulnar bone. So this is the coronoid process, and the olecranon process is at the back in the olecranon fossa. This is coronoid fossa. This is the जो है आपका radial fossa. This is capitulum. This is the head of the radius, and this is the ulnar tuberosity. So this जो ulnar notch है, that is actually fits in the trochlea of the humerus. So this is also a synovial joint, the humero-ulnar joint, the synovial hinge joint. It means the hinge joint always gives two movements. That one is the flexion and other is the extension. So with the articulation between the trochlea of the humeral condyle, so this is the trochlea of the humerus and the trochlear notch of the ulna, and this notch or the trochlea present in the ulnar bone. So this is humero-ulnar joint. So other joint which is present in the elbow joint, that is the humeroradial joint. In the articulation between the humeroradial joint, the capitulum of the humeral condyle, so this is the capitulum, and this is the head of the radius where the concavity present over the surface of the head, and that articulates with the capitulum, and this head during the flexion enters into this radial fossa. So this is humeroradial joint, the articulation between the capitulum of the humeral condyle and the concavity of the superior aspect of the head of the radius. So this is the head, and concavity is present on the superior surface of the head of the radius. So this is humero-radial and this is humero-ulnar. And now we are going to discuss another important joint. So this is a hinge joint, synovial hinge joint, only gives two moments. One is the flexion and other is the extension. Okay. The other important joint which is part of the elbow joint, that is the radio-ulnar joint. So this is a radio-ulnar joint where the head of the radial fits into the radial notch which is present in the ulnar bone. So this is upper और या proximal radio-ulnar joint. इसे आप upper radio-ulnar joint भी कह सकते हैं और proximal radio-ulnar joint भी कह सकते हैं. So this is a pivot joint, and this joint will give two movements. One is the supination and other is the pronation. हम बिल्कुल end में देखेंगे कि what are those movements which are present in these joints. What is flexion? What I mean by the flexion? What is the extension? What are the other movements which I told you right now, that is the supination and pronation. अभी supination pronation से तो आप काफी जो हैं वो familiar हैं. So is a pivot joint, pivot type of synovial joint. So this joint is a pivot type of synovial joint, and these are humeroradial and humero-ulnar. These are the these are the hinge joints, synovial hinge joints. So this is a pivot type of synovial joint with articulation between the head of the radius and the radial notch of the ulna. So this is the radial notch of the ulna, and this is the जो है आपका head of the radius. ये देखो radial notch of the ulna. तो ये बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया ulna, ठीक है. So these three articulations forming the two different aspects allow the flexion extension of the elbow. Flexion extension कौन करवाएगा? ये आपका humero-radial and humero-ulnar. And ये जो आपका radio-ulnar joint है, it causes the supination and pronation because it is a pivot joint, and these flexion and extension and the supination and pronation of the forearm and the wrist and the elbow. So ये वाली movement करवाएं. So we will switch forward. अच्छा, these all joints are covered by a capsule. मैंने आपको बताया था ऊपर एक capsule लगा हुआ होता है, and the capsule has two parts. One is the fibrous layer जो ऊपर वाली होती है, the inner layer which is the synovial membrane, and that synovial membrane is actually secretes an important type of fluid that is called the synovial fluid, which lubricates the joint and causes the easy movement of the joint. ठीक है? When in the elderly age, when this
fluid decreases causes the जो है आपका produces the friction in the joint. अब जब भी friction produce होगी pain होगा joints में, ठीक है. The elbow joint has a synovial membrane. Synovial membrane is inner part of the capsule. Lined joint capsule, ये देखिए सारा आपका जो है कैप्सूल को अंदर कवर कर रही है. तो इनर लाइनिंग है, ये देखिए आउटर फाइब्रस लाइनिंग होती है, इनर वाली जो आपको नजर आ रही है लाइट ब्लश कलर की, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मेम्ब्रेन which covers all the articular surfaces of the joint and secretes a fluid that is called the synovial fluid in the synovial cavity. ये आपको synovial cavity नजर आ रही है, ठीक है. तो elbow joint has a synovial membrane lined joint capsule, और capsule का ही ये पार्ट है, ठीक है. ऊपर वाली लेयर फाइब्रस होती है, अंदर वाली लेयर जो है वो साइनोवियल होती है. तो दैट इज contiguous between the hinge and the radioulnar joint. ये पूरे कवर करती है आपकी hinge को भी, radioulnar joints को भी. The synovial lining covers the inner surface of the fibrous joint capsule. ठीक है, ऊपर जो फाइब्रस लेयर होती है ये उसकी अंदर वाली लेयर होती है. मतलब अगर आप देखें कि ये एक फाइब्रस लेयर है, उसके अंदर जो दूसरी वाली लेयर है वो फाइब्रस है. तो इट इज पार्ट ऑफ द कैप्सूल एंड इट ऑल्सो कवर्स द फाइब्रस सर्फेस. जाहिर उसके नीचे है तो वो फाइब्रस surface of the capsule को भी नीचे से कवर करेगी. तो major bursa of the elbow joint is the subcutaneous olecranon bursa. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये अल्ना बोन है, ये इसका कोरोनोइड प्रोसेस है, लेकिन पीछे देखें ये ओलिक्रॉनिन प्रोसेस होता है. ओलिक्रॉनिन प्रोसेस जहां से साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हेन इट स्विच आउट ऑन द आउटर साइड, अगर बाहर निकल के आ जाती है और ये क्या करती है, कोई टेंडन होता है उसके नीचे जो है वो एक कुशन प्रोवाइड करता है. ये जहां भी मसल्स के नीचे आपको जो बर्सल्स मिलेंगे वो एक्चुअली मसल्स के टेंडन को कुशन प्रोवाइड करते हैं. why is it so? To decrease the friction between the tendon and the bone. So major bursa in the elbow joint is the subcutaneous olecranon bursa. So it is present in the olecranon over the olecranon process and found in the connective tissue over the olecranon. So this is a joint cavity. अगर हम यहाँ देखें, this is the synovial membrane. So this is the capsule. ये fibrous layer है कैप्सूल की, ये आपकी synovial membrane है, ये synovial cavity है, इसके अंदर synovial fluid है. ये आपको ट्रोक्लिया नजर आ रहा है, ये कैपिचुलम नजर आ रहा है, ये रेडियल हेड है, ठीक है. ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस नजर आ रहा है. ओलिक्रॉनिन प्रोसेस फिर पीछे होगा. ये देखें, ये प्रोसेस ओलिक्रॉनिन प्रोसेस है, ठीक है. ये आपका देखें ओलिक्रॉनिन बर्सा नजर आ रहा है. ये आपकी कैप्सूल जो कवर किया हुआ है उसको हमने थोड़ा सा कट किया है, तो यहाँ से आपको नीचे से साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, ऊपर से कैप्सूल की फाइब्रस लेयर होगी. The capsule has two parts. The inner layer is the synovial membrane. The outer layer is fibrous. ठीक है. So this is the synovial membrane. This is the outer covering which is fibrous. ठीक है. ये आपको whole of the joint is covered by a synovial membrane. So this capsule is also covers this radioulnar joint as well. So this radioulnar joint, which is a pivot joint, is also a part of the elbow joint. ठीक है, क्योंकि एक ही कैप्सूल ने इसको भी कवर किया हुआ है. ठीक है. सो यहाँ से आपका देखें ये जॉइंट अंदर कैविटी नजर आ रही है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा. ठीक है. सो दिस इज लाइक दिस. अब आगे जाते हैं. अब इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स है. तो इट हैज अ मीडियल लिगामेंट, ठीक है, एंड द लैटरल लिगामेंट. और एक होता है जो आपका रेडियोअल्नर जॉइंट को जो है वो अब ये कैप्सूल आ गया, कैप्सूल के ऊपर जो है वो अब लिगामेंट है. लिगामेंट इज लाइक जो है फाइब्रस स्ट्रिप्स होती हैं जो प्रॉपरली जॉइंट को सिक्योर करती हैं, फर्म करती हैं. So medially the joint capsule thickens to form the medial or ulnar collateral ligament. So this is the ulnar collateral ligament. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ulnar collateral ligament. Ulnar collateral ligament के भी 3 parts हैं. This is the anterior part जो आगे है, this is the posterior part जो पीछे है, and this is the oblique part. ठीक है. So it has 3 bands, anterior band, posterior band and the oblique band. ठीक है. On all 3 bands unite to form the ulnar collateral ligament which extends from the medial epicondyle. जाहिर है ये medial side पर है, ulna जो है वो आपकी medial side पर है, तो ये जो ulnar collateral ligament होगा this is also on the medial side which extends from the medial epicondyle to the humerus of the coronoid and the olecranon of the ulna. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ द
anterior जो band है part of the ulnar collateral ligament which starts from the medial epicondyle and it goes towards the coronoid process of the ulna. And this the posterior band which starts from the medial epicondyle of the humerus and it's going and securing towards the olecranon process of the ulna. And this oblique band attaches over the olecranon process and between the coronoid process. So this is like this. So these all bands, which is one is in between the medial epicondyle and the coronoid process, and other is in between the medial epicondyle and the olecranon process, and the last one, which is the oblique, is between the olecranon and the coronoid process. So this is the three bands unites to form the ulnar collateral ligament. अच्छा, यहाँ पर एक आपको और लिगामेंट ये नजर आ रहा है, दैट इज द एन्युलर लिगामेंट. एन्युलर क्या करता है, ये क्या करता है, जो आपका ये अपर रेडियो अल्नर जॉइंट है यहाँ पर, इसको अराउंड जब आप गोल गोल यहाँ पर पट्टी बांध देंगे तो ये बन जाएगा आपका अल्नर कोलैटरल लिगामेंट विच एक्चुअली सिक्योर्स दिस रेडियो अल्नर जो आपका जॉइंट है, जो पिवट जॉइंट है, उसको सिक्योर करता है. सो दिस एन्युलर लिगामेंट इज प्रेजेंट here to secure the upper or the proximal radioulnar joint. So we are moving forward. So another ligament. So यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है annular ligament, which is actually is not for the जो है humeroradial and humerulnar. This is this annular or round ligament is securing the proximal or the upper radioulnar joint. Okay. So what other ligaments which are present on the lateral side? This is the lateral epicondyle and this is the ligament. यहाँ भी आपको ये accessory collaterals नजर आ रहे हैं, ठीक है. So ये है lateral आपका ulnar collateral ligament, ये आपका ulnar collateral है और ये आपका radial collateral है. The lateral or the radial collateral ligament extends from the lateral epicondyle and distally blands to the annular ligament. ये देखें, ये radial collateral जो है ये आपका start होता है from the lateral epicondyle and it merges with the annular ligament. ठीक है, so it starts from the lateral epicondyle of the humerus and it distally blands. Distally means end जो है इसका ये blind हो रहा है with the annular ligament, ठीक है, of the radius. ठीक है, एनुलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस. अब दूसरा है जो लास्ट है, दैट इज द एनुलर लिगामेंट. ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एनुलर लिगामेंट which wraps around the head of the radius which and attaches the ulna anteriorly and posteriorly. ज़ाहिर है head of the radius which is actually entering into the radial notch of the ulna. So ये around wrap around होगा इन दोनों के and it secures the head of the radius in the ulnar notch of the radial notch of the ulna में, ठीक है. The surface of the annular ligament is lined with the synovial membrane and allows the head of the radius. इसके नीचे जो है वो synovial membrane है and it allows the head of the radius to rotate inward during supination and pronation. जब भी आप supination pronation करेंगे उसमें क्या होगा, ये जो है move करेगा, ठीक है. So this is the ये आपका annular ligament है, ये accessory collateral ligaments है. ये जो है ये आपका रैप अराउंड होता है एंड कवर्स द और सिक्योर्स द प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट, ठीक है. जब आप मूवमेंट करते हैं सुपिनेशन प्रोनेशन तो ये जो है मूव होता है व्हाइल मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियोअल्नर जॉइंट और ये आपके रेडियोअल्नर जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है. तो अब यहाँ देखें कौन सी, ये देखें नॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हैंड है. अब ये जब आप यू आर मूविंग योर फोर आर्म इनवर्ड अंदर की तरफ लेके जाएंगे, क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है. और जब इसी आर्म को आप खोलने की कोशिश करेंगे, ओपन करेंगे अपने फोर आर्म को, तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन. तो दिस इज एन एक्सटेंशन एंड दिस इज अ फ्लेक्शन और ये आपका नॉर्मल पोस्चर है, ठीक है. सो दिस इज when you're taking your forearm inward inside तो ये आपका फ्लेक्शन होगा. अगर आप एंगल को ब्रॉड करते हैं तो एक्सटेंशन, एंगल को नैरो करते हैं तो फ्लेक्शन, ठीक है. सो दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है. अब आगे जाते हैं. अब हमारे पास है रिस्ट जॉइंट. रिस्ट में आपको मैंने पहले बताया था जो है यहाँ पर रेडियस है और यहाँ पर ये जो है रेडियस में एक सॉकेट था इज फॉर द स्केफॉइड, दूसरा सॉकेट था फॉर द यूनिट. तो
इंफीरियर सर्फेस ऑफ द रेडियस है इज फॉर्मिंग अ जॉइंट विद द स्केफॉइड एंड ल्यूनेट, ठीक है, और ये आपका है ट्रैक्यूट्रम। तो यहाँ पर एक जो है कार्टिलेज होता है, फाइब्रोकार्टिलेजनस डिस्क होती है हेयर, और ये क्या करती है डायरेक्टली जो है अल्ना इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द जो है आपका ट्रैक्यूट्रल और पिसिफॉर्म, लेकिन ये जो है वो डायरेक्टली आपका जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। So the wrist is a complex joint that bridges the hand to the forearm. It's actually a collection of multiple bones and joints. The bones comprising of the wrist include the distal ends of the radius and 8 carpal bones, ठीक है। So distal ends of the radius होता है 8 carpal bones हैं, यानी स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। ये हुक ऑफ हैमेट आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेपीजियम, ये ट्रापेजॉइड, ये जो है आपका कैपिटेट, और ये हैमेट, और ये हैमेट हुक ऑफ हैमेट है। तो ये 8 हमारे पास जो है कार्पल बोन्स है। एंड द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द 5 मेटाकार्पल, ये आपके सारी बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स हैं। यहाँ आपके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बना रहा है, यहाँ आपका मिड कार्पल जॉइंट्स बन रहे हैं, और यहाँ आपका जो है रिस्ट जो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना है वो जॉइंट बना रहा है। अच्छा, ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना जो होते हैं दे आर कॉनकेव, ठीक है, ये एक कॉनकैविटी है। और जो आपकी ये प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स हैं, यानी स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, ये एक कॉन्वेक्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी है, यहाँ कॉनकैविटी है। सो दिस कॉन्वेक्सिटी फिट्स इनटू द concavity of the radius and ulna, ठीक है। All these bones participate in the complex articulations that allow variable mobility of the hand. The hand is capable of 2 degrees of freedom, flexing, इसमें रिस्ट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट होगी, फ्लैक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, और अल्नर डेविएशन होगी, और रेडियल डेविएशन होगी। ये मैंने पिक्चर डाली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखें, ये देखें कॉन्केविटी बन रही है, ये आपकी फाइब्रोकार्टिल आर्टिकुलर डिस्क है, ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, अल्ना और दिस आर्टिकुलर डिस्क combine to form a concave surface which fits into this scaphoid, lunate and tricutrum. ये जो proximal row है, फिर ये है trapezium, trapezoid, capitate and hamate, ये सारे जो हैं इसमें फिट हो जाएंगे। ये proximal row जो है वो फिट होगी, लेकिन रिस्ट जॉइंट में आपके 8 कार्पल बोन्स आते हैं, और proximal rows of the जो bases of the metacarpal bones आती हैं, ठीक है बेटा। फिर यहाँ आप देखिए this is the articular disc, this is the distal end of the radius, or this is the distal end of the radius which is concave. ये आपकी articular disc है, और ये आपकी अल्ना है। यहाँ से देखिए कि this joint is covered by a loose synovial membrane which enters also into between the radius and ulna. यहाँ भी जो है चली जाती है, ये आपकी synovial membrane चली जाती है, तो इतनी लूज होती है। और ये आपके स्केफॉइड, ये ल्यूनिएट है, ये ट्राइक्यूट्रम, ठीक है। ये आपकी ट्रेपीजियम, ट्रापेजॉइड, और ये आपका ये ट्रेपीजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट, और ये हैमेट, ठीक है। तो ये है आपके 8 बोन्स, और ये आपके जो है बेसिस ऑफ द 5 मेटाकार्पल्स, ठीक है। सो अल्ना प्रिवेंटेड फ्रॉम आर्टिकुलेटिंग विद द कार्पल बोन्स, इसलिए बता रहे कि डायरेक्टली अल्ना जो है वो आर्टिकुलेट नहीं होती, बाय अ फाइब्रोकार्टिलेजनस लिगामेंट कॉल्ड आर्टिकुलर डिस्क के जरिए जो है ये आर्टिकुलेट विद द ट्रैक्यूट्रम। Together the carpal bones form a convex surface. मैंने आपको बताया था कि ये जो carpal bones हैं ये convex surface बनाते हैं which articulates with the concave surface of the radius and जो है आपकी an articulating disc, ठीक है। ये articulating disc होती है क्योंकि अल्ना के नीचे articulating disc है, बाकी जो डायरेक्टली आपका रेडियस जो है उसके पॉइंट और यूनिट के साथ जो है वो जॉइंट बना रहे हैं। अब जैसे ऐसे आ सकता है कि जो है which radius forming a joint with which carpal bones, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। तो आपने उसमें से स्केफॉइड और ल्यूनेट को टिक करना है, ठीक है। सो ये कॉन्वेक्स बना रहे हैं कार्पल बोन्स, और ये जो है आर्टिकुलर डिस्क और जो आपका रेडियस है इट इज फॉर्मिंग अ कॉन्केव सरफेस ऑफ द रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क। ये आपका कॉन्केव सरफेस बना रही है, ये कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्केव में जाके फिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो द रिस्ट कौन सा जॉइंट है, ये बड़ा मैं देती होती हूँ आपके उसमें which type of joint it is. So it is जैसे elbow था तो elbow तो hinge joint था। अब wrist जो है
और जो आपका शोल्डर जॉइंट था वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। तो अब देखें, अब जो आपका रिस्ट जॉइंट है, दिस इज एन इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है, एंड अलाउइंग फॉर मूवमेंट अलोंग टू एक्सिस, यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन करवाता है, कैन ऑल अकर एट द रिस्ट जॉइंट। तो ये सारे के सारे आपके मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट पर होते हैं। और कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट, द फाइब्रस, आपकी पता है आउटर लेयर होती है हमेशा जरिए, जो भी आपका कैप्सूल होता है उसकी फाइब्रस लेयर होती है और नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर होते हैं कैप्सूल के। द फाइब्रस लेयर अटैचेस टू द रेडियस, यहाँ से रेडियस के आर्टिकुलेटिंग सरफेस पर अटैच करेगा, एंड द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, और प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स के साथ भी अटैच होगा, यानी इसके पॉइंट यूनिट एंड डायफ्यूट्रम के साथ। The internal layer is composed of synovial membrane। आपको मैंने बताया है बार बार, कैप्सूल की दो लेयर होंगी, ऊपर वाली फाइब्रस, अंदर वाली जो है वो साइनोवियल। और जो अंदर वाली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमेशा ऐसा फ्लूइड जनरेट करती है जिसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हो, विच लुब्रिकेट्स द जॉइंट, और आपके जॉइंट मूवमेंट इजी हो जाता है। और जब भी ये एल्डरली एज में ये जॉइंट फ्लूइड कम होने लगता है तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और देखिए एल्डरली जो लोग होते हैं आपके, जो नाना नानी, दादा दादी, तो उनको बहुत सारे जॉइंट्स पेन्स होते हैं। जॉइंट पेन्स का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है वो डिक्रीज हो गया है। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल, इनसाइड जो है फाइब्रस लेयर के अंदर जो है वो आपकी एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी जो पूरे जॉइंट को कवर करेगी, ठीक है। लाइंस द कैप्सूल एंड इट अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। ये जो आर्टिकुलर सरफेस जहां पर ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, उन मार्जिन्स को कैप्सूल का काम है कवर करना। उसके नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन भी ऐसा ही काम करेगी, वो भी उन्हीं को कवर करेगी। is attached to the margins of the articular surfaces. The joint cavity does not communicate with that of the distal radioulnar joint। मतलब ये joint cavity इसके साथ जो ये जो यहाँ पर जो कैप्सूल होगा और यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी वो डिस्टल, ये पहले हमने जो पढ़ा था वो प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट था जो कि आपके एल्बो जॉइंट के अंदर आ रहा था, कैप्सूल उसको भी कवर कर रहा था। मगर ये जो रिस्ट जॉइंट है इसमें कैप्सूल सिर्फ आपका लोअर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड जो आपकी आर्टिकुलर डिस्क है उसको कवर करेगा, और आपकी जो प्रॉक्सिमल रो है उसको कवर करेगा, मगर इट विल नॉट कवर द डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट, उसको नहीं कवर करेगा। The joint cavity does not communicate with that of the distal radioulnar joint or with the joint cavities of the intercarpal bones। ये जो proximal row और जो distal row के बीच में जो joints बन रहे हैं intercarpal joints, वो वहां भी आपका कैप्सूल या साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर नहीं करेगी, उनके लिए फिर अलग आपके कैप्सूल होंगे और लिगामेंट्स होंगे और साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका जो है प्रॉक्सिमल रो को कवर करेगी और आपका जो डिस्टल एंड्स ऑफ द रेडियस अल्ना एंड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो आपकी डिस्क है उसको कवर करेगी, और ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को भी कवर नहीं करेगी। अब देखिए आपका यहाँ पर प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट था विच इज पार्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है, वहाँ कैप्सूल साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको भी कवर कर रही थी, मगर in the wrist joint the capsule and the synovial membrane is not covering the is not the part of the जो है आपका wrist joint। इसमें ये वाला जो joint है distal radioulnar joint is not part of the wrist joint, ये this is a separate joint, ठीक है। so there are 4 ligaments होते हैं जो आपका ये देखें ये है आपके यहाँ पर होते हैं अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होता है, यहाँ पर आपका रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है, यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है आपके रेडियो कार्पल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक आपका पामल यानी जो पाम साइड है वहां पर होगा तो उसको पामल रेडियो कार्पल लिगामेंट कहेंगे, जो पीछे होगा डॉर्सल सरफेस पर होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगा, डॉर्सम ऑफ द हैंड पर होगा, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल रेडियो कार्पल। तो पामर रेडियो कार्पल कौन सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये पाम है, पाम पर जो ये है लिगामेंट्स आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं, दिस इज पामर रेडियो कार्पल। इट पासेस फ्रॉम द रेडियस टू बोथ रोज ऑफ द कार्पल बोन्स को कवर करते हैं ये लिगामेंट्स, ठीक है। बोथ रोज अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, इज टू एंश्योर दैट द हैंड फॉलोज द फोरआर्म ड्यूरिंग सुपिनेशन, और ये कोशिश करते हैं कि आपका जो हाथ है वो कोई अलग एंटिटी ना लगे, वो भी पार्ट ऑफ द फोरआर्म ही लगे, तो इसको सिक्योर करते हैं, ठीक है। और डॉर्सल यानी जो आपके पोस्टीरियर सरफेस पर हैं, इट पासेस फ्रॉम द
रेडियस टू द बोथ रोज ऑफ द कार्पल बोन्स, बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एंटीरियरली प्लेस्ड है, वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है टू बोथ रोज ऑफ द कार्पल बोन्स, ठीक है, यानी 8 कार्पल बोन्स को कवर करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिस्ट, ये स्टेबिलिटी ऑफ द रिस्ट को मेंटेन करता है, बट आल्सो एंश्योर्स दैट द हैंड फॉलोज द फोरआर्म ड्यूरिंग प्रोनेशन। तो ये प्रोनेशन में हेल्प करता है और ये आपका सुपिनेशन में हेल्प करेगा। और ये अल्नर कोलैटरल जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ग्रीन में, दैट रन्स फ्रॉम द अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस। मैंने जब आपको अल्ना पढ़ाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि अल्ना के हेड के साथ एक छोटा स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, वहां से ये स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर टैक्यूट्रम जो है वो कार्पल बोन, वहां पर टैक्यूट्रम और पिसिफॉर्म पर अटैच होता है। ट्राइक्यूट्रम एंड पिसिफॉर्म पर यहाँ पर अटैच होता है। वर्क्स इन यूनियन विद अदर कोलैटरल लिगामेंट्स, दूसरे कोलैटरल लिगामेंट्स भी होते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव लैटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब ये कोशिश करते हैं कि बोन्स जो हैं यहाँ से निकल के बाहर ना आ जाए, मतलब ये बहुत ज्यादा लैटरल मूवमेंट को बोन्स की प्रिवेंट करते हैं। जब तक ये लगे रहेंगे तब तक जो बोन्स हैं आपकी अलाइन रहेंगी, जब ये ब्रेकअप हो जाएंगे तो बोन्स यहाँ से शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, रन्स फ्रॉम द रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से अल्नर कोलैटरल और रेडियल साइड पे रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है टू द स्केफॉइड बोन, स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, वहां पर आके अटैच होता है। वर्क्स इन यूनियन विद अदर कोलैटरल लिगामेंट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव लैटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। जब तक यहाँ पर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होगा, यहाँ से न कार्पल बोन्स लाइक स्किफॉइड एंड जो है आपकी ट्रेपीजियम यहाँ से निकलेंगी नहीं, और ये सारे इन कंटिन्यूटी जो है में अलाइन रहेंगी, ठीक है बेटा। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये आप देखें, ये अल्नर कोलैटरल है, फ्रॉम द अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस टू द आपका जो है ये जो हेमेट और हुक ऑफ हेमेट तक। और यहाँ पर ये देखें रेडियल कोलैटरल है, ये स्किफॉइड और ट्रेपीजियम, ये स्किफॉइड और ट्रेपीजियम, ये ट्राइक्यूट्रम और पिसिफॉर्म तक, ठीक है बेटा। और ये देखिए पामर साइड वाला है आपका, ये जो लिगामेंट है ये आपके जो है डिस्टल सर्फेसिस ऑफ द रेडियस और अल्ना को कवर करते हैं और 8 कार्पल बोन्स तक जाते हैं। ये पामर लिगामेंट ये सिर्फ पाम के हैं। इसी तरह आपके डॉर्सल सरफेस पे पामर ये है, और डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट्स जो हैं वो आपके पीछे होंगे डॉर्सल सरफेस पर। सो दिस इज द radial collateral ligament, this is the ulnar collateral ligament which is attaching the styloid process of the ulnar towards the tachytrum and pisiform। और यहाँ पर radial styloid process से लेकर आपका जो है स्किफॉइड और ट्रेपीजियम तक। so this is all about the ligaments of the wrist joint। अच्छा अब देखें, अब जो रिस्ट पर कौन कौन सी मूवमेंट होगी, देखिए ये फ्लेक्शन हो रही है। जब आप अपने रिस्ट पे हाथ को नीचे करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और जब आप रिस्ट पे जो अपने हैंड को अबव मूव करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपकी है दिस इज अ रेडियल डेविएशन ऑफ द हैंड। जब आप अपने जो हैंड को, ये आपकी रेडियस है, जहां पर आपका थंब होता है वहां पर रेडियस है। तो जब आप अपने हैंड को रेडियली मूव करते हैं तो ये आपको होती है रेडियल डेविएशन। जब आप अपने हैंड को अल्ना जो है, अल्ना की तरफ, अल्ना जो है आपकी लिटिल फिंगर की तरफ होती है, अल्ना बोन इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड एंड जो ये जो आपकी रेडियस है इज ऑन द लेटरल साइड। तो आप देखिए जहां पर अल्ना है, अगर आप उस तरफ अपने हाथ को मूव करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अल्नर डेविएशन, ठीक है। अब देखें, जब आपने ये डॉर्सम जो सरफेस है आपकी हैंड की, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन। और अगर ये आपकी पामर सरफेस है, ठीक है, इसको कहेंगे, जब आप ऐसे हाथ करेंगे तो ये कहेगा प्रोनेशन, अब ये जब ऐसे हाथ करेंगे तो ये आपका सुपिनेशन। तो जो पिवट जॉइंट्स हैं आपके, जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स, ये दोनों जॉइंट्स जो हैं ये आपके क्या कराते हैं, ये आपके प्रोनेशन और एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है। और आपके जो रिस्ट जॉइंट है उस पर आपकी फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, रेडियल डेविएशन होती है, अल्नर डेविएशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास आता है एक डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो आपका देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इसमें हेड ऑफ द, उसमें क्या था, अपर वाले में प्रॉक्सिमल में रेडियल हेड था, यहाँ पर अल्ना का हेड है। और यहाँ पर जो है दिस इज द जो
अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर अल्नर हेड एंटर होगा अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस, है किसमें वो नॉच, रेडियस के अंदर। तो दिस इज अ पिवट जॉइंट है, इसमें भी प्रोनेशन और सुपिनेशन होगा बिटवीन द हेड ऑफ द अल्ना एंड अल्नर नॉच ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। यहाँ देखें अल्नर नॉच होगी वो रेडियस के अंदर होगी, जिसमें हेड ऑफ द अल्ना जो है वो फिक्स होगा। इसमें भी ऊपर कैप्सूल होगा जो फाइब्रस होगा, अंदर वाली लेयर जो होगी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। आर्टिकुलेशन इज एक्सट्रीमली लूज, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बड़ी लूज होती है, गॉट इट। तो क्या हो गया, एक एक्सटेंड्स अपवर्ड एज अ रिसेस बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इन दोनों जॉइंट कैविटीज के अंदर चली जाती है लाइक अ रिसेस। बेटा अपनी वीडियोस ओपन नहीं करें, ये पब्लिकली जो वीडियो है वो यूट्यूब पर जाती है तो आपकी वीडियो पिक्चर आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो दिस इज द मूवमेंट्स ऑफ प्रोनेशन, और ये जो प्रॉक्सिमल और रेडियो जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है वो क्या कराता है आपका प्रोनेशन। जब आप उल्टा करते हैं हाथ को, डॉर्सम ऑफ द हैंड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन। जब आप the palmar surface होता है, that is called the supination of the forearm, involve a rotatory movement around a vertical axis at the proximal और distal radio ulnar joints पर आपकी यही movements होती हैं। यानी कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, जैसे मैं दूं which movements are caused by the proximal and distal radio ulnar joint, तो आपको आना चाहिए कि वो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होगी, ठीक है। अब ये समझ में आया कि साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ बड़ी लूज होती है, एक्सट्रीमली लूज होती है, and extends upward as a recess between the radius and ulna। ये देखिए रेडियस और ये अल्ना, और as a recess it enters in between the, ये आपकी कैविटी के अंदर चली गई है, ठीक है। अच्छा लिगामेंट्स कौन कौन से होंगे, लिगामेंट्स ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट आप देखें यहाँ पर आपका ये डिस्टल ये वोलर आपका जो है डिस्टल रेडियो अल्नर लिगामेंट है, और यहाँ आपका डॉर्सल, ये देखें डिस्टल एंड्स हैं, ये आपके रेडियस का, ये आपका अल्ना का, यहाँ पर डॉर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट है। तो एंटीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट is a narrow band of fibers extending from the anterior margin, और ये देखिए ये एंटीरियर बैंड है, वोलर बैंड, वोलर भी एंटीरियर को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंटीरियर बैंड है ऑफ द जो है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नॉच। ये देखिए जो नॉच होगी वो आपकी रेडियस के अंदर होगी, वहां से स्टार्ट होता है और टू द फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना, और हेड ऑफ द अल्ना पे जाके एंड होता है। तो ये आगे का बैंड है जिसको आप एंटीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट कह रहे हैं, और पोस्टीरियरली वी हैव दिस बैंड जिसे आप डॉर्सल और द पोस्टीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट कहेंगे। दिस लिगामेंट एक्सटेंड्स बिटवीन द corresponding surfaces of the dorsal aspect of the articulation, यानी यही यहाँ से आपका जो रेडियल नॉच है वहीं से निकलेगा और आपका जो है हेड ऑफ द अल्ना पर आके फिनिश होगा। तो दिस इज अ एंटीरियर रेडियो अल्नर बैंड, दिस इज अ पोस्टीरियर रेडियो अल्नर बैंड, ठीक है। जो लिगामेंट जो है दिस एक्चुअली सिक्योर्स द आपका जो है लोअर रेडियो अल्नर या आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को सिक्योर करता है, ठीक है बेटा। अब देखिए जब हम प्रोनेशन करते हैं, ये देखें ये नॉर्मल आपका है पोस्चर। जब आप प्रोनेशन करते हो यानी अपना डॉर्सम साइड हैंड का ऊपर करते हो, देखिए ये किस तरह जो बोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। देखने ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, एंड सी हाउ द बोन्स आर मूविंग ऑन ईच अदर। और जब आप सुपिनेट करते हैं यानी आपके पामर सरफेस ऊपर होता है, तो सी दिस कि ये किस तरह आपकी बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है, यानी रेडियस अपनी जगह है और अल्ना अपनी जगह है। जब आप प्रोनेट करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। सो दिस इज द प्रोनेशन एंड दिस इज द सुपिनेशन व्हिच इज एक्चुअली a task of the proximal and distal radio ulnar joint। दोनों ही जो joint हैं they are pivot joint and they causes the pronation and the supination, ठीक है मेरा बच्चा। so joints of the hand जल्दी जल्दी देख लेते हैं जितना टाइम बच गया। so what is the time right now, only 3 हो रहा है, okay try to finish early। so this is intercarpal joints हैं। so in between the individual bones of the proximal row of the carpal bones and between the individual bones of the distal row of the carpal bone, so between the proximal और distal row के बीच में जो है वो आपका है intercarpal joint, ठीक है। इसको आप मिड कार्पल जॉइंट कहते हो बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रोज ऑफ द कार्पल। आप इसको इंटरकार्पल जॉइंट भी कह सकते हो, मिड कार्पल जॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। साइनोवियल प्लेन जॉइंट होते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है इसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ग्लाइड कर सकते हैं।
ठीक है। कैप्सूल सराउंड करेगा ई जॉइंट, ठीक है। बोन्स आर यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस लिगामेंट। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियरली जो प्रेजेंट होंगे वो एंटीरियर लिगामेंट होंगे, पोस्टीरियरली जो इनको सिक्योर करेंगे एक दूसरे के साथ वो पोस्टीरियर लिगामेंट्स होंगे और इंट्रोशियस लिगामेंट्स होंगे, ठीक है बेटा। इंट्रोशियस यानी दो बोन्स के बीच में, एंटीरियर पोस्टीरियर दो बोन को ऊपर से कवर करेंगे, इंट्रोशियस जो होंगे वो बोन्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी इनकी, दिस लाइंस द कैप्सूल, जाहिर है आपको पता है ऊपर फाइब्रस होता है नीचे साइनोवियल होती है मेम्ब्रेन, एंड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस। जाहिर है आर्टिकुलर सरफेसेस की मार्जिन को कवर करता है। This joint cavity of the mid-carpal joint extends not only between the two rows of the carpal bones को cover नहीं करती but also upward between the individual bones forming the proximal row and or downward between the bones of the distal row। ऊपर से भी cover करती है और अराउंड भी कवर करती है ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ नर्व्स हैं जो इसको सप्लाई करती हैं इंटरकार्पल जॉइंट को, यानी इंट्रोशियस नर्व है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। अभी मैं आपको रेडियल नर्व्स पढ़ाऊंगी। याद रखें कि जॉइंट्स को वही नर्व सप्लाई करती हैं जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो वहां से गुजरती हैं। यानी पीछे आपकी रेडियल नर्व होती है, आगे आपकी जो है अल्लर नर्व होती है और मीडियन नर्व होती है। तो वही नर्व करती हैं जो आपके मसल्स को सप्लाई करती हैं। और ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट, मैंने आपको बताया एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ग्लाइड करता है ये जॉइंट, और बिटवीन द प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लिगामेंट्स ने इनको कवर किया हुआ है। ये जो आपको बिटवीन द टू बोन्स आपको नजर आ रहे हैं ये इंट्रोशियस लिगामेंट्स होंगे। अच्छा, और जो ऊपर से कवर करेंगे दैट इज द जो है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट। अब ये देखें ये